Hello, dear students. I'm Amar Singh, your teacher, and today we are going to learn the quadratic equation chapter. So, in this chapter, today we are going to learn the first lecture of this series of learning quadratic equation from the perspective of JEE Mains and Advance. So, आप लोग जानते हैं कि JEE Main में हर साल almost every year, like if I were to talk about J main, ठीक है, J main, you get one question from this chapter, right? But there are a few techniques in this chapter which we will be learning, which we shall be using in calculus, right? So from the foundation purpose, this chapter is going to be very crucial for you. All right. So like since it's the beginning of your JEE preparation, so here you will be encountering uh, very interesting methods to look at the expressions, to look at the equations, and the words you have been using, what are the exact and correct meanings of those terminologies. You will be learning those things here. So get ready for learning new and interesting things in this chapter. And this chapter teaches a lot to a newbie in this JEE preparation. So I welcome you again on this important chapter of JEE preparation, quadratic equation, and today we are going to study the very first lecture of it. All right. So JEE main में every year almost you see one question, है ना? There is hardly any miss from this chapter. And in JEE advance, you like other chapters, you cannot make any say that how many questions will be there from this chapter. But definitely there will be two questions from this chapter, right? Here and there they will mix up some other concept also, but fundamentally you can say the problems asked in JEE advanced from quadratic equation lie somewhere 2 to 4. Yeah, sometimes you get a column match, you may get a list of question list also, or if you get lucky then you may get a nice passage from this chapter also. So in JEE advanced we cannot say anything about this quadratic equation, that how many questions which we are going to face there in JEE advanced. All right. So let's start learning. तो मैं आपको बता दूं मेरे बारे में, आई एम अमर सिंह, जैसे मैंने आपको बताया है, आई एम एन IIT जोधपुर ग्रेजुएट. आई स्टडी कंप्यूटर साइंस देयर. आई हैव बीन वर्किंग in various top IIT JEE preparation coaching institutes in India. I have worked with FITGE, Resonance, IIT Space, and IIT Home in Nagpur. So that's my current organization. So let's start learning. So in this quadratic equation, first we will be understanding what are the polynomials and how do we make equations out of them. So these polynomials which almost everybody have studied polynomials earlier in your uh, earlier classes. In 9th standard, 10th standard, we have been learning polynomials, right? So what are the polynomials, how do they look like? So anything like if I were to say that I have a polynomial of variable x, let me name it px, the polynomial of x. So this will be something like this: an x power n plus an minus 1 x power n minus 1, like this, a1x a naught, right? So usually what do we say about these a1, a2, a3? So these ai's they are all constants, right? They do not vary with x. So since they are the constant values, but actually what happens, we usually take them real. So they can be real as well as complex also. So but here which the polynomials which we consider most of the time, we take the polynomials with real coefficients.
So you can say that the polynomials which we are considering here are real polynomial, sorry, the polynomials with real coefficients. And what about the powers? So you can see the powers are 0, 1, 2, the powers to the variable. So here the power n, it is a whole number, because the powers which we are applying to x, the variable 0, 1, 2, 3, 4, you can see the powers on x, right? That's it. So actually what do we say, this is the essential structure of the polynomial. How does a polynomial look like? But what happens that we put some essential conditions in it, like there are the terms which we say that what is the degree of this polynomial. So in order to define a degree, let's say I'm defining the degree of this polynomial, then somebody will come and say the highest power which the variable has in this expression polynomial is called the degree of the polynomial, right? So what is the highest power? So highest power, if we were to see here, is n, right? So highest power is n, so that is our degree. So degree is n. But definitely if you want to know that the highest power to x is n, then that must be there. That means the coefficient corresponding to it should not be 0, right? So like that. So we know all the types of polynomials, right? Like the constant polynomials, the zero polynomial, the quadratic polynomial, like polynomial of degree 3, the polynomial of degree 4, polynomial of degree 5 and all, right? So what happens, like when you equate two polynomials, or you can say when we equate any two expression, for that sake it becomes an equation, right? When you equate something, it becomes an equation, right? So let me take two polynomials, let's say Rx, there is this polynomial Rx, and there is this polynomial Qx. If I equate them, this becomes equation. This statement that this is equal to that is now an equation, right? Equation. This we say is an equation. Now, mostly if we see an equation in the right hand side, we most of the time see 0, right? So that's a very famous type of equation we see. So Rx is equal to 0, or you can say this polynomial Qx is now 0. So 0 is also a polynomial, right? So this is also an equation. So equation is something where we equate two expressions or two quantities, you can say, in general. So this is the idea about equation and polynomials, right? So when we talk about equation and identities, what do we mean by an equation, and what do we mean by an identity? Are they same, or do they differ? So let's have a look. So now consider this equation, x square minus 4 equal to 0. This is an equation because we have equated x square minus 4 with 0. Now look at this, x square minus 4 is equal to x minus 2, x minus 4, x plus 2, sorry. So here also we have equated two expressions. One is x square plus minus 4, and another is x minus 2 into x plus 2. So this is also an equation, and this is also an equation. So what is the difference? Actually what happens is, when we write an equation, right, so it may have variables involved in it which can be unknowns, right? So here in this first equation we know that x square minus 4 is 0, but if it is true, then this must be true for some value of x, right? If we
put x equal to 2, this equation holds true. That's what we say. But when you put x equal to, let's say, 3, does this equation satisfy? No, sir. So we say x equal to minus 3 is, it does not belong to this equation, right? So this is not something which we say would be a valid thing to do here. So what we mean by an equation, that if an equation has some unknowns in it, so for some particular values of those unknowns, that equation would hold true, right? What about the identities? Identities is something like, if you put anything in the both the sides, in left hand side and in the right hand side, if there are any variables, you can assign any non-value to those variables. Like, yeah, if I were to say x equal to 3 here, so this will hold true because let's check it out. 3 square minus 4. How much is this? This is 9 minus 4 equal to 5. Alright. And let's check out what is the right hand side when we put x equal to 3. So this is 3 minus 2 and 3 plus 2. This becomes 1 into 5, that is 1 into 5, that is 5. So that's all true. Yeah, it has to be. So that's the basic difference in the equation and identity. Identity holds true for every value of the variables involved, while in equation, few particular values of the variables satisfy the equation, right? If we have a look at the variable equation of this type, x square minus y square equal to 0. Let's say this is some equation we have, and you know what identity I would be writing here correspondingly: x minus y, x plus y. Now you understand the difference. If here I were to put y equal to, let's say, 3, so what x can I put? Sir, corresponding to y equal to 3, x can be 3 or minus 3. But here, if I were to substitute y equal to 3, then x can be anything you want, right? Let's see. X square minus 3 square, that will become x minus 3, x plus 3. Here, if I wish to put x equal to 5, I can do that. Put x equal to 5, there is no problem. 5 square minus 3 square is 5 minus 3 and 5 plus 3. 25 minus 9, and this is 2 into 8. So 25 minus 9 is how much it is? 16, and this is also 16. So which holds true. But here, putting x equal to 3, there are no options. Just put x equal to 3 or minus 3 if you want this equation to be satisfied. So that's the basic difference. So you can say all the identities are a special type of equations, right? So I hope now you understand what is identity and what is an equation. Now let's move forward. Quadratic equation versus identity. This is something really good. Actually यही हमारा समझने का पर्पस था, वरना मैं ऐसा कोई क्या मतलब उसमें पर्पस है कि हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी पढ़ेंगे, while it seems like some knowledge of some earlier classes. छोटी कक्षाओं में हम ये सब पढ़ते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इम्प्लीकेशन हम कब लगाते हैं, इक्वेशन इक्वेट कब करते हैं ना. सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पोलिनोमियल आइडेंटिटी में क्या रिलेशन हम बना सकते हैं यहाँ पे. तो बेटा जब भी हम किसी पोलिनोमियल की बात करते हैं, लेट अस कंसिडर ए पोलिनोमियल. let's take x power 5 minus 3x square plus 6x minus 7 equal to 0. So this is our
पॉलिनोमियल इक्वेशन वी कैन से। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड में भी पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल्स को इक्वेट कर दिया। नाउ दिस हैज बिकम एन इक्वेशन जिसमें पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्व है बोथ द साइड्स। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई ऑफ डिग्री 5, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट जो पावर है x का वो 5 है, तो हम कहेंगे ये जो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास में आ गया है। अब आपने कभी सुना होगा इस तरह से कि इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यूज रैंडमली पुट करके देखना चाहूँ कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो पता है आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है? यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज मिलने वाली है। इस तरह की बात हम कब करते हैं? जब हमारे पास में डिग्री नॉन होती है हमें, व्हेन वी नो व्हाट इज द डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट? सो इक्वल टू दैट, मतलब जो भी डिग्री है उस डिग्री के इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये 5 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसमें 5 वैल्यू हमारी x की ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है? और वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी उसको पता करने की जो बात होती है, वी कॉल दैट फाइंडिंग द रूट्स, फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। उस पर हम आएंगे अभी कैसे पता करते हैं सब। तो ये हम समझ गए हैं, ठीक है? 5 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके 5 रूट होंगे, मतलब 5 वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, दैट्स द रूल। ऑलराइट, तो अगर हम बात कर लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, राइट, तो उसके कितने रूट होंगे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो 2 ही रूट होंगे सर। अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा तो हो नहीं सकते। लेट्स से अगर कोई क्लेम कर रहा है 2 से ज़्यादा है तो क्या होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो नाउ कंसिडर ए polynomial equation of degree 2 which we are calling quadratic polynomial। अगर उसके 2 से ज़्यादा रूट हो जाए तो क्या होता है? तो नाउ ax² plus bx plus c equal to 0। Let's say this quadratic equation has more than 2 roots। so more than 2 roots में क्या होगा? अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरह के हम रूट्स मान सकते हैं। अगर ये 3 अलग अलग रूट्स हैं तो हम कहेंगे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ये कहेंगे हम। तीनों ही अनइक्वल रूट्स हैं। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं। तो अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं इसके, तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए तीनों। तो देखते हैं इसको करवा के सेटिस्फाई भाई हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए एक्स को हमने अल्फा रख दिया, ए अल्फा इज स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन आ गया। बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, हेंस बीटा ऑल्सो मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। गामा भी इसका रूट है तो गामा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह गामा लिख दो, ए गामा स्क्वायर बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ठीक है, 3 इक्वेशन हमारे पास में आ गए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, तो आपको मिलेगा ए बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। बीटा माइनस अल्फा का एक फैक्टर हम बाहर ले सकते हैं, ए टाइम्स बीटा माइनस अल्फा बचा इधर में, और इधर बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, सो इसको 0 होना पड़ेगा, राइट? तो हमने यहाँ पे एक बात कह दी कि भाई ए टाइम्स बीटा माइनस अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 5। अब हम ऐसा करते हैं, नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो क्या होगा यहाँ पे सर, ए गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी गामा माइनस बीटा, और सी माइनस सी 0 हो जाएगा।
गामा माइनस बीटा टाइम्स ए गामा प्लस बीटा, राइट, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ, प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी, गामा और बीटा इक्वल नहीं है तो हमारा जो सेकंड ये जो फैक्टर है इसको जीरो होना पड़ेगा। ए टाइम्स गामा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 लेट्स से। अब आप क्या करिए, 5 इक्वेशन 5, ठीक है, तो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए टाइम्स गामा माइनस अल्फा इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो गामा और अल्फा तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए को जीरो होना पड़ेगा। इफ़ ए इज़ ज़ीरो तो आप इक्वेशन 4 या 5 में से कोई भी एक ले लीजिए। ए को अगर आप जीरो करेंगे तो बी को भी जीरो होना पड़ेगा। अगर ए और बी जीरो हो गए तो इक्वेशन 1 2 3 में से आप कह सकते हैं कि सी हैज़ टू बी ज़ीरो। इसका मतलब इक्वेशन तो बचा ही नहीं हमारे पास है भैया। भाई हमारा इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। आप क्या कह रहे हो, इसमें ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सब कुछ जीरो हो गया भैया। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू वाट एक्स प्लस जीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें एक्स की कितनी वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे, एक्स की तो सर आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। सो इट हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये तो आइडेंटिटी बन गई है विच सेटिस्फाइज एवरी वेरिएबल वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। तो एक्स को आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, दिस विल बी ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज एन आइडेंटिटी नॉट एन इक्वेशन। मतलब इक्वेशन है लेकिन आइडेंटिटी टाइप का, राइट। तो आपको जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, तो मतलब साइमल्टेनियसली ए बी एंड सी ऑल शुड बी ज़ीरो, राइट। या फिर कोई ऐसा कह दे, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी ज़ीरो। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपसे कहा कि भैया अच्छा एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखो, शो दैट इक्वेशन हैज मोर देन 2 सॉल्यूशंस। मोर देन 2 सॉल्यूशन रखता है ये, क्या करें। हाँ ठीक है, तो इसको करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पे कि सर चलो सॉल्यूशन हम लिख देते हैं इसका। सबसे पहले आप यहाँ पे पुट करके देखो x इक्वल टू ए, पुट x इक्वल टू ए इन दिस। तो देखो जो पहला टर्म है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि x को a रखोगे तो जीरो हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे x को a रख दिया हमने, तो बचा ये वाला टर्म। अब ये आपको क्या देगा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, केवल सेकंड टर्म हमारा यहाँ पे बचने वाला है। तो यहाँ पे हमने रखा x को a, तो a माइनस बी a माइनस सी अपॉन a माइनस बी a माइनस सी, बाद में भी जीरो पहले भी जीरो, इज इक्वल टू 1। और ये तो 1 के इक्वल ही होता है, देखिए सब कुछ कैंसिल हो जाके 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं x को 1 रखूं तो ये इक्वेशन ट्रू है। इसका मतलब x इक्वल टू a satisfies this equation which we call the roots of equation. A is the root of equation. Similarly, x equal to b and x equal to c also satisfy this equation. Hence, this equation has roots as a, b, c. How many roots? Total 3. So it has more than 2 roots. That's what was asked in the question in the beginning.
says show that this equation has more than two roots. So roots are a, b, c. Hence, see the forming of this equation. This is a quadratic equation, right? Hence, if we were to simplify this equation into quadratic terms, we shall be getting x square 0 into x square 0 into x plus 0 is equal to 0. This is what we are going to get. I would recommend do some algebra and try this out. You will find it that this equation is an identity, right? So let's move forward. So whenever you see this kind of equation, just try to prove that this has more than two roots. You'll be able to say that that is an identity. Find the number of value or values of p for which the equation has more than two roots. Since this is a quadratic format, right? So let me write what type of quadratic equation. So x square is coefficient. सबसे पहले x square coefficient देख लेते हैं. The coefficient of x square is p square, and from here minus 3p, and from here plus 2, right? So this is coefficient of x square. Now coefficient of x minus p square and plus 5p plus 4, right? This is the coefficient of x. Now what is the constant term? Constant term is something which does not have x in it, so this is minus p square plus p, that's it, equal to 0. So that is overall equation, overall quadratic equation. So someone says that it has more than two roots, that means this must be an identity. So this should be 0, this should be 0, as well as this should be 0. So p square minus 3p plus 2 must be 0, minus p square plus 5p plus 4 will be 0, and minus p square plus p equal to 0. Here we get two factors, p minus 1, p minus 2 equal to 0, and here what do we get? P square minus 5p minus 4 equal to 0. So here we do not get anything actually, if you see, right? We have no solution for this equation. Like we have p is equal to minus p plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, and here we get p equal to 1 plus minus 1, right? So from here we get two values of p, one is 1 and another is 2. Here also we get two values of p, which is 5 plus minus addition of both will be under root 41 divided by 2, and here also we get two values of p. So how many values of p will we get? Is it 5? No sir. So p here we get nothing. Why? Because there is no common value of p in all three equations, right? In these three parts, when we solve them, we got no common value, because if you take p equal to 1, then this will become 0, this will become 0, but this will not be 0. But what do we want is all the coefficient should be 0. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म भी 0. साइमल्टेनियसली तीनों 0 होने चाहिए. कोई दो 0 हो जाए और एक 0 ना हो तो प्रॉब्लम है. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी ऐसा p का वैल्यू नहीं है जिसमें कि सारे कोफिशिएंट 0 हो जाए. हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इक्वेशन कैन हैज मोर देन टू रूट्स. दिस कैन नेवर बी एन आइडेंटिटी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. ए बी सी तीनों अननोन मतलब अनइक्वल हैं, तीनों रियल हैं. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमसे पूछे हैं कितने होंगे. तो सबसे पहला हमने अभी यहाँ पे किया था, इस तरह जब कुछ ना समझ में आए, इफ द
इक्वेशन लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, तो आप क्या करो, सबसे पहले ए बी सी डाल दो उसमें भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पुट x इक्वल टू ए। अगर x को हमने a रखा, सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2a²। एक्चुअली ऐसा करते हैं, x को हम -a रखते हैं, ठीक है, x को हम -a रखते हैं। क्यों आया मेरे दिमाग में, क्योंकि ये एक तो जीरो हो रहा है ना उससे, और b -a c -a के एक फैक्टर भी कैंसिल हो रहे हैं। तो इंस्टेड पुटिंग x इक्वल टू a, -a सीम्स ए बेटर चॉइस। तो यहाँ पे पहला वाला तो जीरो हो गया, फिर यहाँ पे एक आया b -a होल स्क्वायर, और डिवीजन में इसके आया b -c एंड b -a प्लस c -a होल स्क्वायर, डिवाइडेड में आया c -a और c -b इक्वल टू 1 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आप इसको सोल्व करो, देखो b -a का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा b -a और b -c, प्लस c -a का भी एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो c -a अपॉन c -b, ठीक है। अभी हम इसका लेफ्ट हैंड साइड या फिर इक्वल टू 1 करके ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं अगर ये हाँ सेटिस्फाई होता है तो, नहीं तो ठीक है। देखो यहाँ पे है b -c, इधर है c -b, तो हम एलसीएम ले सकते हैं b -c, ऊपर से आया b -a और यहाँ पे माइनस टाइम्स c -a, राइट, इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा a कैंसिल हो जाएगा और b -c अपॉन b -c इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी सी में साइक्लिक सिमेट्री है यहाँ पे, तो डेफिनेटली x इक्वल टू -b भी सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू -c भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब किसी कितने सॉल्यूशंस हो गए, 3 सॉल्यूशन हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, मतलब 3 तो सॉल्यूशन आ ही गए, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो इसको कितने वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई करेंगी, इनफाइनाइट, हेंस द आंसर इज इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट इज द आंसर, ठीक है, इनफाइनाइट इज द आंसर। अगला देखते हैं हम इसमें। हाँ ये बात आ गई, आप में से कुछ लोगों को पता होगा और कुछ को शायद पता ना हो कि रूट्स और सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम इसको यहाँ पे देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। नाउ मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ और आप उसके रूट्स के बारे में या जिसको आप सॉल्यूशन भी कहते हैं कई बार, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो कंसिडर फ्यू इक्वेशंस, जैसे x-1 या x-4, x-5, ये एक मेरी इक्वेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके रूट्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसके सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ कि इसके रूट्स क्या हैं, ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती हूँ, ठीक है। तो इसेंशियली सर 4 है एक तो और एक 5 है, ये इसके रूट्स होंगे। सॉल्यूशन क्या है, 5 और 4 दोनों ही इसके सॉल्यूशंस भी हैं। तो इससे तो कुछ खास समझ में आया नहीं कि रूट्स और सॉल्यूशन क्या है, एक जैसे लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आएगा समझ में आएगा। x-4 मैंने इसको स्क्वायर कर दिया यहाँ, ठीक है, और x-5 इक्वल टू 0 कर दिया। अब बताओ रूट्स क्या हैं। आप बोलो सर 4 5 आर द रूट्स, बहुत सही, लेकिन सॉल्यूशन 4 एंड 5 ही नहीं है। अब कुछ लोगों को चमक गया। आगे बढ़ते हैं, x-4 क्यूब, x-5 स्क्वायर और x+1 इक्वल टू 0। +1 और घुसेड़ दिया इसमें, तो देखो 4 4 4 5 5 -1, दीज आर द रूट्स। दोस्त इसको आप एक्सपेंड करके देखो, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, डिग्री 6 का। और अभी हमने बात की थी अगर कोई पॉलिनोमियल डिग्री 6 का इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, एग्जैक्टली 6। तो ये 6 रूट लिखे हुए हैं आपके सामने, 4 4 4 3 बार रिपीट हो रहा है,
फाइव फाइव दो बार रिपीट हो रहा है और एक है -1 वो अकेला है, लेकिन सॉल्यूशंस क्या है 4 5 -1। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस इक्वेशन possess? 3 ओनली। समझ में आ गया? जब भी रूट रिपीट होता है हम उसको सॉल्यूशन में एक ही काउंट करते हैं। रूट जो है 4 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार ही, लेकिन सॉल्यूशन में कितनी बार काउंट करेंगे? एक बार। कितने सॉल्यूशन है थर्ड इक्वेशन के? 3। रूट्स कितने हैं इसके भाई? रूट्स हैं शायद 6। दैट्स द बेसिक डिफरेंस ऑफ द सॉल्यूशंस एंड रूट्स। तो आप क्या कहते हैं इसमें? सॉल्यूशंस आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। जो भिन्न भिन्न रूट्स होते हैं, जो भिन्न भिन्न मूल होते हैं, हम उनको हल कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब हल और रूट्स मतलब मूल। ठीक है, हिंदी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो डिस्टिंक्ट रूट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। विभिन्न हल नहीं, विभिन्न मूल हल कहलाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात। तो ये समझ में आ गई, भूलना नहीं इसको। इक्वेशन जब भी आता है ना जेई में, हमेशा सॉल्यूशन का काउंट पूछता है भाई। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस हैं, रूट्स का काउंट नहीं पूछता। अलग अलग बताओ उसमें, ऐसा रहता है। तो अभी आप समझ जाओगे, कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी आपको कोई रूट रिपीट होता रहे और अगर आपसे पूछा है कि सॉल्यूशन का काउंट देना है, तो रिपीटेड रूट को एक ही बार काउंट करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कहीं देखा है तो एक बार फिर से लिख देते हैं, अपन सबके ने देखा होता है। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपना a नॉन जीरो रहे। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, रियल हो या इमेजिनरी कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही लगता है। क्या है फॉर्मूला इसका? सर फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। काफ़ी बच्चों ने इसको ऐसे भी देखा होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2a। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम d का इस्तेमाल करते हैं। तो इसेंशियली दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड बोथ quadratic formula as well as Sridharacharya formula और धराचार्य formula if you don't want to give respect to the guy। तो इस फॉर्मूले को सबको याद करना है। लेट्स हैव अ लुक हाउ डू वी गेट टू दिस फॉर्मूला। देयर आर वेरियस मेथड्स टू इट। एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा भी एक सिमिलर मेथड है इसका, जो मैं उसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलमोस्ट सबने देखा होता है। जिसने नहीं देखा होता है वो घर जाके अपनी पुरानी कॉपी किताब देख के और कोशिश करेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के करके हम हाउ डू वी गेट दिस फॉर्मूला, राइट। सो एक अप्रोच है मेरे पास। इफ आई वर टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विद 4a, तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4bax एंड 4ac, राइट। 4a से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, जीरो तो जीरो ही रहेगा। अब देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे 4ac का ट्रांसफर कर दो। 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स इज इक्वल टू -4ac ट्रांसफर कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ b² ऐड कर दो दोनों तरफ, राइट। अब देखो गौर करो यहाँ पे, ये क्या बन गया? 2ax प्लस b का परफेक्ट स्क्वायर बन गया और ये है आपका b² माइनस 4ac। अब समझ में आ गया, स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सर स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ में। तो हमने कहा कि भाई 2ax प्लस b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ये आ गया भाई यहाँ पे। अब आप करो b का ट्रांसफर और 2a से डिवाइड, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, पहले तो हमने b का ट्रांसफर किया -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे? 2a से। दैट इज व्हाट ओ फॉर्मूला इज, राइट। तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं या फिर श्री
दराचार्य सूत्र। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बेटा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ इट हैज़ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, then what is relation between alpha beta and abc? That's what we call the relation between roots and coefficient. तो यहाँ पे दो बातें हम करते हैं। यहाँ पे देखिए दो बातें एक होती है कि एक हम निकालते हैं यहाँ पे सम और एक हम निकालते हैं प्रोडक्ट। किसका? रूट्स का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सर रूट्स क्या है हमारे पास में। ये देखो बेटा, जो आपके पास में रूट्स होते हैं वो हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दीज आर द रूट्स। सिंस यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है तो अल्फा बीटा में से किसी को भी आप प्लस वाला एज्यूम कर लें, किसी को भी माइनस वाला। ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज दिस? सम ऑफ रूट्स। ये आपका है क्या? सम ऑफ द रूट्स। सो अल्फा प्लस बीटा आएगा सम ऑफ द रूट्स में। तो अल्फा हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा हमने यहाँ पे क्या ले लिया है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब आप देखो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है। तो बचा क्या आपके पास? माइनस बी बाई 2a और इधर से भी माइनस बी बाई 2a बचा। तो दिस इज लाइक ट्वाइस ऑफ माइनस बी बाई 2a एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस बी बाई a। तो ये रिलेशन हो गया। सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी बाई a। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होगा आपके पास में अल्फा टाइम्स बीटा। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो अल्फा हो गया, मल्टीप्लाई करिए आप इसे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। तो अब यहाँ पे देखेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सो दिस विल बिकम माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2a दैट बिकम्स 4a स्क्वायर। सो देखो बेटा बी स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे है आपके पास में 4a स्क्वायर। b square get cancelled, in the numerator we get 4ac and in the denominator 4a square. 4a will get cancelled and you will get c by a. So that's the product of the roots. ठीक है, this is one of the analogies according to which we find the relation between roots and coefficient. We have to remember these are very important relations between roots and coefficient. All right, so actually लेट मी क्लीन दिस अप, राइट। तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा ये सब, और हम इसको क्लीन करके मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें कि हम यहाँ पे रूट्स और रिलेशंस में रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो दूसरा मेथड है उसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो एक्चुअली रूट्स हमें कैसे मिलते हैं कि हमने इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया होगा और जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास में उनको इक्वेट करके 0 से हम ये रूट्स मिलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब हम इक्वल टू 0 करते हैं तो इसके दो फैक्टर बने होंगे, एक एक्स माइनस अल्फा और एक एक्स माइनस बीटा का फैक्टर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखते हैं। एक को लिख लिया सर एक्स माइनस अल्फा और एक फैक्टर को लिख लिया एक्स माइनस बीटा। अब आप देखिए दोनों इक्वल होने चाहिए पॉलिनोमियली, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल से लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में ए है
और राइट हैंड साइड में 1 है, तो उसको आप इक्वेट कर दीजिए ए के मल्टीप्लाई करके। अभी ये दोनों एक जैसे हो गए, क्योंकि x माइनस ए का जो फैक्टर है इसको जीरो करके x इक्वल टू अल्फा रूट मिलेगा, और x माइनस बीटा का जो फैक्टर है उसको जीरो करके बीटा रूट मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू a, दोनों को मल्टीप्लाई करो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा, दिस इज व्हाट वी गेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए टाइम्स अल्फा बीटा। तो देखिए ए अल्फा स्क्वायर तो दोनों में इक्वल है। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो b है और इसमें ये है, तो क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। b मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है a, वो इक्वल होना चाहिए, सॉरी a नहीं है यहाँ पे, c होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है c, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस a अल्फा बीटा। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या मिला है आपके पास में, c बाई ए। वी कॉल दिस सम ऑफ रूट्स एंड वी कॉल दिस प्रोडक्ट of roots, right? So these are two important relations which you must remember, right? तो कई बार क्या होता है कि आपको रूट्स पता करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके से जो क्वेश्चन है उसमें रूट्स का रिलेशन पूछा होता है कुछ ना कुछ, तो हम उसको क्या करते हैं, अल्फा बीटा का कोई भी एक्सप्रेशन हो, वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, जैसे हम अभी इसमें आगे समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हो गया बेटा अपने पास। अब इसमें देखो कि एक बात मैं आपसे जो अभी कह रहा था यहाँ पे, कि जब भी वेन एवर यू सी समथिंग लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताओ क्या होगा। तो हमें एक्चुअली क्या है हमारे पास में जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं हमारे पास अल्फा बीटा, सम क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास में, प्रोडक्ट अल्फा बीटा आ गया सर सी बाई ए। तो हम जानते हैं केवल सम और प्रोडक्ट, लेकिन हमसे पूछ लिया स्क्वायर्स का सम, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बताओ, इनका सम बताना है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा तो ऐसा कर देंगे। आपसे अगर पूछ ले कि आप बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए, तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। आपसे पूछ ले कि अल्फा माइनस बीटा बताइए, तो एक्चुअली बड़ा कौन है छोटा कौन हमें पता नहीं है। अगर आपसे कह दे कि अल्फा इज बिगर देन बीटा, सो एक्चुअली हमसे ये कई बार मोस्टली हमसे ये एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछता है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस तो पॉजिटिव होता है, तो हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं यहाँ पे। और अल्फा प्लस बीटा, एक्चुअली आइडिया कहाँ से आ रहा है, ये देखो समझो बात को आप, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम इसको कह सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, इट डजंट मैटर, आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा सर हमें ऐसी ट्राई करना है कि हम उसको सम और प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है। ये बात है हमारे पास में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगला यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो एक क्वेश्चन की तरह है, हम इसको सोल्व करेंगे कि फाइंड द कंडीशन बिटवीन द कोफिशिएंट ए बी सी फॉर विच वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो मैं देखो बेटा यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2 रूट्स हैं
ऑब्वियसली दो रूट होंगे, लेकिन हमने उनको एज्यूम कर लिया अल्फा एंड बीटा। तो कह रहे हैं कि एक जो रूट है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो हम ले लेते हैं कि जो बीटा है दैट इज अल्फा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा ये कितना है, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो गया यहाँ पे सी बाई ए। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, सी बाई ए पावर 1/3। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस बी बाई ए, राइट। नाउ पुट अल्फा's value in terms of c and a's cube root. So this can be written as alpha, let me write cube of this equation. Let's cube it first, then we shall be substituting the value of alpha. So alpha cube a plus b cube is a cube plus b cube plus 3ab a times b. तो a cube b cube plus 3ab a plus b. So that is minus b by a. So alpha cube we know, here we can say alpha cube is c by a. Put that value. So alpha cube is c by a. So alpha cube power 2 that is c by a power 2 plus 3 times alpha into alpha square that is alpha cube that is c by a, and alpha plus alpha square is minus b by a, minus b by a, and that is the relation which we are looking for, c by a, c square by a square minus 3 bc by a square is equal to minus b by a. Multiply the whole equation with a square, so this will become ac plus ab plus c square equal to 3bc. So that's the required relation between a, b, c coefficients, such that one root of this equation will be the square of other. In the second question, if alpha beta are the roots, then find the values of these. So first question में हमसे पूछा है कि अगर अल्फा बीटा अगर इनसे रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। पहली बात तो हम ये लिख लेते हैं, तो हमने बेटा देखो अल्फा रूट्स अगर इसका है तो a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा अगर कॉमन आ जाए a अल्फा प्लस b इक्वल टू माइनस सी, और a अल्फा प्लस b को हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस सी बाई अल्फा, राइट। तो जो हमसे पूछा है वो पूछा है a अल्फा प्लस b -3 और a बीटा प्लस b पावर -3। तो a अल्फा प्लस b को हमने लिखा माइनस सी बाई अल्फा पावर -3। सिमिलरली इसको भी हम क्या लिख देंगे, माइनस सी बाई बीटा पावर में -3। ठीक है बेटा, तो माइनस सी क्यूब बाहर आ गया, ये बचा 1 बाई अल्फा पावर -3 प्लस 1 बाई बीटा पावर -3। ठीक है, सी पावर -3 बाहर आएगा एक्चुअली, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 बाई सी क्यूब, और ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये हमने अभी देखा ही था -1 बाई सी क्यूब, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज, इस ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो -1 बाई सी क्यूब, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से हमारे पास माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस अल्फा इंटू बीटा 3 टाइम्स सी बाई ए, और अल्फा टाइम्स बीटा इज माइनस बी बाई ए।
ये आपको मिलेगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। थोड़ा लेंथी था, ठीक है। सेकंड हलवा टाइप का है, थोड़ा इजी है। मतलब एल इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, एंड सडनली दिस विल बिकम वेरी इजी। अल्फा इसको माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए अपॉन सी बाई ए होल स्क्वायर। दैट इज द आंसर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, है भाई। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। आई होप आई एम करेक्ट। या ठीक है। तो ये आपके पास में सेकंड एक्सप्रेशन का सोल्यूशन। मतलब जब भी अल्फा बीटा की बात हो, ट्राई करो कि उसे सम और प्रोडक्ट में आप एक्सप्रेस कर दो। जैसे finding the quadratic equation if the roots are given, that's an easy one, right? तो कैसे हम करते हैं इस काम को? अगर रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हम इसे याद भी रखते हैं इस तरह से, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस, इधर हम लिखते हैं सम और इधर लिखते हैं हम प्रोडक्ट इक्वल टू 0। क्या लिखते हैं इधर में? सम और इधर में लिखते हैं प्रोडक्ट। किसका? ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ रूट्स। सिंपल सी बात है। कैसे कैसे मिला सर आपको? यहाँ पीछे जाके देख लो थोड़ा सा, ठीक है भाई। पता नहीं मैंने मिटा दिया है कि कहीं पे, हाँ नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव क्लियर दैट। कैसे पता चलेगा सर आपको? देखो बेटा, इसेंशियली कैसे आया है, हाउ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जब भी हमारे पास इक्वेशन देती है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये तो इक्वेशन होगी। दो रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो ए का कोई रोल है नहीं, ए को निकाल दो आप, जीरो में इक्वेट करके, है नहीं। तो आप सर आपने इसमें यहाँ पे किया कि एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा टाइम्स एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो बस आपको ये याद रखना है, अगर आपको रूट्स गिवन हैं और इक्वेशन चाहिए तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्होज रूट्स आर दिस। देखो भाई, अल्फा बीटा रूट्स दे दिए हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा टाइम्स बीटा, वो होगा सी बाई ए। ये दो चीज़ें तो आप पल्ले गांठ बांध लो, ठीक है, ये हमें याद रखनी है। अब हम क्या चले आगे, पहला क्वेश्चन सोल्व करने। क्या होगा इक्वेशन? 2 अल्फा 2 बीटा का रूट्स हैं, तो भाई देखो हमें इक्वेशन ऐसे पता करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? सम, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाता है हमारे पास। तो चलो हम सबसे पहले सम निकाल देते हैं। सम है यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जो क्या होगा? 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए, सो दिस बिकम्स माइनस 2b बाई ए। और प्रोडक्ट निकालना है आपको। प्रोडक्ट क्या होगा? 2 अल्फा टाइम्स 2 बीटा, दैट बिकम्स 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? सी बाई ए, सो 4 टाइम्स सी बाई ए, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? माइनस 2b बाई ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? 4c बाई ए इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स बाई ए प्लस
4c by a equal to 0. That becomes ax square plus 2bx plus 4c equal to 0. That is our required equation having roots 2 alpha 2 beta. सेकंड में क्या करना है, वही हर एक में सम और प्रोडक्ट निकाल दो और यहाँ जमा दो इस इक्वेशन में लिख दो सम और प्रोडक्ट जो भी आया। तो जैसे इसमें सम क्या आएगा सेकंड वाले में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो होगा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए, है ना, अल्फा प्लस होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लिख तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, इक्वेशन आ जाएगा। जैसे थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो ये तो हमने अभी निकाला है यहाँ पे, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए अपॉन सी बाई ए, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बाई बीटा मल्टीप्लाइड बीटा बाई अल्फा, दिस इज 1। तो सम आपका कुछ आ रहा है एबीसी के टर्म्स में और प्रोडक्ट आपका 1 है, बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन आ जाएगा। नंबर 4, हो ये देखो ये कैसे लिख दिया यहाँ पे। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भाई, है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई अल्फा। सिमिलरली ए बीटा प्लस बी माइनस सी बाई बीटा। अब क्या है कि इनकी पावर में -2 लगाना है, तो -2 लगाना है, तो सम क्या होगा, सम हो जाएगा माइनस सी बाई अल्फा -2 माइनस सी बाई बीटा पावर -2, दिस इज 1 बाई सी स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 बाई सी स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम जानते हैं क्या है, बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा सर माइनस सी बाई अल्फा -2 माइनस सी बाई बीटा पावर -2, दिस हैज बिकम 1 बाई सी पावर 4, राइट, अल्फा बीटा पावर 2, दिस इज 1 बाई सी स्क्वायर, सी पावर 4 c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज 1 बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सम है आपके पास में, प्रोडक्ट है, इक्वेशन भी आ जाएगा होपफुली, राइट। दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। सो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। इसमें हमने क्या सीखा, बहुत ही बेसिक चीज़, ऑलमोस्ट आप में से मैक्सिमम लोगों को सारी चीज़ आती ही होंगी ऑलरेडी। इसमें रूट्स निकालना हमने सीखा, कुछ पॉलिनोमियल्स और आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने सीखा, रूट सॉल्यूशंस का डिफरेंस हमने सीखा, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स सीखा। अगले लेक्चर में हम कुछ थोड़ी और एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े अपने पेस को पिकअप करते हुए एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में।